So good morning बच्चों, I hope you all are well. So student, today we are going to discuss the practical session of data frame attributes. So student, last day we have created a data frame. Have you seen here data frame DTF2? आप देख रहे हैं यहाँ पे DTF2 को बच्चों. DTF2 के अंदर बच्चों 2 rows हैं A and B and columns हैं 3, that is first, second, third. और आप डेटा तो आप देख ही रहे हैं 1 2 3 and 4 5 6. ओके बच्चों, अब ये जो डेटा फ्रेम है बच्चों, इस डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनको प्रिंट करने पर हमें क्या क्या मिलता है. ओके, वन बाय वन आप फिर से एक बार डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख लीजिए. देयर आर थ्रू 2 rows and 3 columns. The column labels are first, second, third, and row indices are A and B, which is user defined, and you know that natural indexing is always 0 1 and the column labels will be 0 1 2 naturally, and user defined are first, second, third and AB. So let's start. So बच्चों, सबसे पहली आज की प्रॉपर्टी में अपन कर रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, विच वी हैव डिस्कस दैट DTF.index will printing the list of that indices of row indices. Okay, तो देखिए रो इंडेसेस हमारी क्या थी बच्चों, ए एंड बी, वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने. इफ़ यू आर शोइंग DTF.columns, it will print the all column headers, only the column labels like first, second, third. But if you are showing DTF.axis, then axis property will tell you the row labeling and column labeling both. देखिए यहाँ पे row labeling AB and column labeling first, second, third, they both are coming here. Okay, now next DTF.dtypes. I have told you that dtype property is the property which tell you the column labels, every column labels containing what kind of data, means column के जो डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसका डेटा टाइप शो कर रहा है. ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये इट इज शोइंग द न्यूमेरिक वैल्यूज. ओके, नाउ सेकेंड कॉलम में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, थर्ड में भी न्यूमेरिक वैल्यू. अकॉर्डिंगली अगर आप डेसिमल वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेसिमल वैल्यू का डेटा टाइप आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज साइज. साइज विल टेल यू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन योर डेटा फ्रेम. एज यू आर सीइंग there are 6 element present, 1 2 3 4 5 6 data element were there, so it is showing you 6. Now DTF.shape, you know that बच्चों shape of data frame is row और column की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में ये आपको शो करेगा. तो there are 2 rows and 3 columns, तो रो 2 हैं और columns 3 हैं. so इस डेटा फ्रेम का शेप आपका 2,3 हो गया. नाउ डायमेंशन, ऑब्वियसली देयर आर 2 डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम, x एक्सिस एंड y एक्सिस, so obviously the endem will print 2. Now next DTF.empty. as you are seeing that बच्चों data frame में values are present, it is not a empty data frame, so obviously it is giving DTF.empty is false. Now next is DTF.count, will count the number of values present in specific number of column. like DTF.count आपने फंक्शन चलाया तो फंक्शन, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, DTF.count, count is a function, not a property of data frame. Okay, so we will leave it, we will discuss this in next classes when the functions of data frame will be discussed. Now I am telling you the DTF.t. T stands for transpose. As I told you बच्चों, see here there are 2 rows A and B और columns are first, second, third. Now what will happen when I am just transposing this data frame, the all columns will be row and rows will be columns. So here, see here, when I will print DTF.t, the column labelings first, second, third will be the row indexes now, and the row indexes will be column headers now. Okay, but the data is same बच्चों. देखिए यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. लाइक B जो रो इंडेक्स है और सेकंड जो कॉलम लेवल है उसका डेटा क्या है 5, और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो B आपका कॉलम लेवल और सेकंड का डेटा इज 5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेटा DTF.values विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम के ओनली वैल्यूज ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा फ्रेम बच्चों. नाउ next topic is selecting a specific data or assessing the data element of data frame. So बच्चों you know that पर्टिकुलर जब भी आपको डेटा फ्रेम में से डेटा निकालना है
तो I told you, if you would like to print the complete data frame, you must need to what? Write print and the data frame name. It will print all the column labels with all the row labels and with their values. But if you would like to print only the selected column of the data frame, what you will do? Write the data frame name dot and the specific column name for it you want to print. Or you can do this as well, DTF, in angle bracket you just mention the that particular column label. अगर आपके नए कॉलम लेबल यूजर डिफाइंड डाल रखे हैं तो बच्चों यूजर डिफाइंड को आप सेमी कॉलन के अंदर डाल देंगे, और अगर दैट नेचुरल इंडेक्सिंग है लाइक 0 1 2 3 तो आप उसको भी डाल सकते हैं. ओके, इट विल प्रिंट ओनली दोज पर्टिकुलर कॉलम जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. अगर आपको बच्चों 2 और 2 से ज़्यादा कॉलम्स आपको देना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से क्या करना होगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर अ लिस्ट ऑफ कॉलम पास करने होंगे लाइक दैट, कि आपको सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम दोनों एक साथ देखना है. तो आपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट में क्या पास कर दिया, सेकेंड एंड फर्स्ट बोथ. इट विल प्रिंट द बोथ कॉलम्स लाइक सेकेंड वाला भी फर्स्ट वाला भी. ओके, you can also change the order of column. It is not compulsory कि every time you can just print first second then third. आप जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रिंट करेंगे यहाँ पे उसी ऑर्डर में जो पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ मेंशन करेंगे उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा. ओके ओके बच्चों, सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग दीज कॉलम नेम्स आप रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस विच इज नेचुरल अकरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, डेटा फ्रेम में भी बच्चों सीरीज की तरह जब आप स्लाइसिंग ऑपरेशन करते हैं तो जो नेचुरल इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग हमेशा बच्चों नेचुरल इंडेक्सिंग पे वर्क करती है. यूज़र डिफाइंड जो कॉलम्स है या यूज़र डिफाइंड जो रो लेबलिंग्स है, आप स्लाइसिंग उनकी मदद से नहीं करते हैं. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.